In the previous class, we discussed some techniques of scientific management. The last one we were discussing was functional foremanship. In functional foremanship, we discussed that there are 8 different types of supervisors which Taylor has suggested. Taylor suggested there should be 2 departments under factory manager. One is planning department headed by planning in charge, and the other is production department headed by production in charge. Now under production in charge, the first supervisor he suggested is instruction card clerk. What is the function of instruction card clerk? To prepare the instructions for the workers according to which they have to perform their work. Second is route clerk. The function of route clerk is forgotten. So channelize the route To determine the route of the employees and materials and the sequence of operations. Saksham, your voice is cracking. It's not coming clear. So once The third one is time and cost clerk. Time and cost clerk का क्या काम होता है, Gracie? So the function of time and cost clerk is to set the timetable for different jobs. Yes, very good. On the basis of time study. And also to make estimates of cost within which the work is to be completed. Right? Then next is disciplinarian. The function of disciplinarian is to set the rules and regulations which everyone has to follow in the organization to maintain proper discipline. ठीक है, ये हो गए प्लानिंग डिपार्टमेंट के. Then under production department, he suggests again 4 types of supervisors. One is gang boss. Gang means group and boss means leader. So gang boss literally means group leader or team leader. जिस टाइम ये प्रिंसिपल्स फ्रेम किए गए उस टाइम गैंग का मतलब ग्रुप ही होता था सिर्फ, और बॉस का मीनिंग सिर्फ लीडर ही होता था. तो गैंग बॉस इज नो वन एल्स बट द टीम लीडर who makes arrangement of various resources required and who leads the team. Then the second one is speed boss. Speed boss maintains the planned speed of operations. The speed boss ensures that all the work is being carried on in proper time. Time set by whom? So by an organization. अभी जो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट के डिस्कस किए थे सुपरवाइजर, उनमें से ग्रेसी. Sir, due to network issues, I'm not able to hear you properly. Okay. The time is set by time and cost clerk. ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो टाइम सेट किया है उसके बेसिस पर डिसाइड स्पीड बॉस इंश्योर करता है कि काम उसी स्पीड से चल रहा है. अगर नहीं तो फिर वो गैंग बॉस को रिपोर्ट करता है कि सच एंड सच वर्कर इज वर्किंग स्लो, टू लुक इनटू दिस. थर्ड इज रिपेयर बॉस. द role of repair boss is to ensure that all the machines, all the equipments being used in the factory are well maintained. They are repaired as and when required, and they are well maintained so that the work does not stop at any time because of non-functioning of any machinery. Then fourth is inspector.
Now, inspector over here is not a police inspector. We are talking of quality control inspector. The job of inspector is to ensure that the production that is being done, the product that is being made, is as per the quality standards specified. अगर कोई प्रोडक्ट्स क्वालिटी में लैक कर रहे हैं, लो क्वालिटी हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हैं, तो वो रिपोर्ट कर देंगे गैंग बॉस को कि भाई these workers are not producing as per the required quality. Clear? These four? Yes, sir. Okay. So this was about functional foremanship, where Taylor is suggesting 8 different types of supervisors to look after different aspects of supervision. Now, if there are 8 different types of supervisors, tell me, can they violate any principle of fuel? फ्यूल के प्रिंसिपल्स याद है आपको? फ्यूल का एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड. व्हाट डज दैट प्रिंसिपल स्टेट? That at a time the workers should be given instructions by a single superior. यहाँ पे तो 8 superiors हो गए वर्कर के. तो अगर इस फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया तो वर्कर्स विल बी गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 डिफरेंट सुपरवाइजर्स, सुपीरियर्स, एंड दैट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos. तो उसको फंक्शनल फोरमैनशिप भी फॉलो हो जाए, यूनिटी ऑफ कमांड भी फॉलो हो जाए, ऐसा कोई तरीका हो सकता है? हो सकता है. क्या हो सकता है कि हाँ बोलो सर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हो जाए. वो तो बाद में आएगा, अभी सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं हम, फंक्शनल फोरमैनशिप की. देखो, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ प्लान कर रहे हैं पहले से. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो हैं, स्पीड बॉस, अगर उसे लगे काम ठीक स्पीड से नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्टली वर्कर को पॉइंट आउट ना करे, रादर he or she should report to the team leader, and team leader will discuss the matter with the concerned worker. Similarly, quality control inspector, if he or she finds that the quality is lacking in any manner, instead of discussing directly with the worker, the inspector should report it to the gang boss, and then gang boss can discuss the matter with the concerned worker. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now we come to the next technique, differential piece rate plan. Taylor suggested that employees should be paid different wages as per their productivity. Why? To encourage them to produce at least the standard output or even more than that. He suggested efficient employees should be paid at a higher rate than others. अब वो एफिशिएंट एम्प्लॉइज किनको कह रहे हैं? जो स्टैंडर्ड आउटपुट या उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज स्टैंडर्ड आउटपुट इज 100 यूनिट्स पर डे. एवरी वर्कर हैज टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स पर डे. नाउ इफ अ वर्कर एंड द रेट्स आर बिलो 100 यूनिट्स 2 rupees per unit, 100 or above units 3 rupees per unit. So what will happen? A worker who is producing 90 units will get 90 units into 2 rupees, 180 rupees. A worker who is producing 120 units will get 120 into 3, 360 rupees. See the difference in the amount, right? So this will motivate most of the workers to produce at least 100 units, which is the standard, so that they get paid at the rate of 3 rupees per unit. That is the higher rate. ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल लें, 99 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले को कितना अमाउंट मिलेगा? 99 into 2 that is 198. ठीक है, और 100 यूनिट्स वाले को 300.
300। तो अब देखो सिर्फ एक यूनिट के डिफरेंस में उनकी वेजेस में कितना डिफरेंस आ गया। प्रोडक्टिविटी में सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन अर्निंग में 102 रुपीज का डिफरेंस आ गया। सो दिस विल मोटिवेट, जो 90s में जिनकी प्रोडक्शन आ रही होगी उन्हें मोटिवेट करेगा कि भाई 100 तक तो कर लो एटलीस्ट, टू गेट एट अ हायर वेज रेट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट है रेट्स दोनों के, पीस रेट मतलब पर पीस जो पेमेंट उन्हें मिलनी है। सो दिस विल मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट प्लान से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर मे बी जो वर्कर्स है वो मतलब मे बी वो क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करे और क्वालिटी थोड़ी पीछे हो जाए। वेरी गुड। द वर्कर्स इन an attempt to produce more and more to earn more and more, they may start compromising on quality. तो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान के साथ साथ मैनेजमेंट को क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, टू एंश्योर दैट दिस डज नॉट हैपन। अनदर थिंग में हैपन इज some employees, some workers may harm their health by overworking to produce more. In the short run, they will increase their productivity and earning, but if their health suffers, in the long run, their productivity will fall and their health will also suffer. So that should also not happen. Now, this completes our discussion of scientific management. Any doubt, anyone? No, sir. Good. Now we'll discuss some, again, this is a box item given in the book, so we'll quickly browse through it. Some scientific management terms used in modern firms. First one is just-in-time manufacturing. This technique suggests that we should reduce inventory, and by reducing inventory, we should reduce associated storage costs. इतनी ज्यादा हमें इन्वेंट्री नहीं रखनी चाहिए कि हमारी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। सेकेंड टर्म इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ इसी तरह की बात करती है, लेकिन सिर्फ एक इन्वेंट्री के एरिया में नहीं, 7 एरियाज में। इट सेज वी शुड रिड्यूस 7 टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस विच जनरली अकर इन ऑर्गेनाइजेशंस। वन इज ओवर प्रोडक्शन। जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो वेस्ट जाएगी। वेटिंग टाइम, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, दूसरी प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसा वेटिंग टाइम बीच में कम से कम होना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू दिस कैन बी एंश्योर्ड। ट्रांसपोर्टेशन में समटाइम्स द प्रोडक्ट गेट्स स्पॉइल्ड, सो इट शुड बी पैक्ड प्रॉपरली एंड ट्रांसपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट लीस्ट वेस्टेज इज देयर व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग। प्रोसेसिंग में कोई वेस्टेज ना हो। मूवमेंट्स, मोशन स्टडी में हमने पढ़ा था कि अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, उससे टाइम और एफर्ट वेस्ट होता है, तो वही बात यहां पर भी आ रही है। इन्वेंट्री की बात हमने अभी जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में भी की, उसकी वेस्टेज बचानी है। एंड स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? रद्दी, कबाड़, कि उसकी भी वेस्टेज बचानी है। मतलब ऐसा ना हो कि स्क्रैप रखा हुआ है तो बहुत टाइम तक रखा ही हुआ है, साथ साथ स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करके उसे एनकैश करते रहना चाहिए। थर्ड टेक्निक इज, और द थर्ड टर्म इज काइजन। Now, Kaizen is a Japanese word which means improvement. So this technique focuses on innovation. It suggests that people should do experiments, they should use scientific methods, and they should bring innovations in their working. This Kaizen is related with one of the fuel's principles. Which one can you identify? कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉइज को इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, सजेशंस देनी चाहिए, नई चीजें ट्राई करनी चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड विद दैट। फोर्थ टर्म इज 6 सिग्मा। 6 सिग्मा इज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच टू क्रिएट मोर एफिशिएंट प्रोसेसेस। इसमें फोकस किस पे होता है? दैट डिफेक्ट्स, कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ गुड्स में,
लेकिन कितने डिफेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं और कितने एक्सेप्टेबल नहीं हैं, उससे रिलेटेड ये टेक्निक है. इट सेज डिफेक्ट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 इन अ मिलियन. ठीक है, इससे ज्यादा डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए. तो इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि ओवरऑल 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं तो 10 लाख में 3 से 4 तक तो डिफेक्ट ठीक है, इससे ज्यादा यूनिट्स डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए. इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए काम की. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now let us compare Fayol's principles and Taylor's principles. These are complementary to each other. Complementary means which complete each other, like two sides of the coin. So first point is focus. Fayol's principles are focused on improving overall administration. Taylor's principles are focused more on increasing productivity. Okay, although focus is in all areas, but Fayol's principles more on administration, Taylor's principles more on increasing productivity. Perspective. The principles given by both are applicable at all the levels, but Fayol's principles are more applicable at the top level and middle level management, whereas Taylor's principles are more applicable at the supervisory level management. Then comes applicability. Fayol's principles are applicable in all the functional areas. Taylor's are also applicable in all the areas, but mainly in production, more so in production, क्योंकि सारी बात हो रही है टेलर के प्रिंसिपल्स में, टेक्निक्स में, प्रोडक्शन से रिलेटेड. यूनिटी ऑफ कमांड फेयोल के प्रिंसिपल में तो फॉलो होता ही है. टेलर के प्रिंसिपल्स में वायलेट हो सकता है अगर फंक्शनल फोरमैनशिप को ठीक से इंप्लीमेंट ना किया जाए और आठों सुपरवाइजर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दें वर्कर को. बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं, डेवलप किए हैं, वो किस बेसिस पे? अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे. और टेलर की अप्रोच ज्यादातर रही है एक्सपेरिमेंटेशन वाली, मोर फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. देन Fayol is known as father of functional management, whereas Taylor is known as father of scientific management. Fayol की थ्योरी को हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेलर की थ्योरी को कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. पर्सनैलिटी. Fayol was more of a practitioner, means developed principles on the basis of his practice, experience, whereas Taylor was a scientist. Any doubt in any of these? No, sir. No, sir. So this completes our chapter of principles of management. You should complete the questions of this chapter in assignment now. Clear? Yes, sir. Yes, And now sir. we move on to the next chapter. Planning. Now we will discuss each of management functions in detail one by one. The first one is planning. In planning, planning is basically deciding in advance for future. So first of all, we'll decide what are the various types of plans. First type of plan is objectives. What are objectives? Objectives are the purposes towards which all the activities of an organization are directed. मतलब हमें ultimately achieve क्या करना है, हमारे goals क्या हैं, targets क्या हैं. These are objectives. They are desired ends which an organization wants to achieve. They provide the reason for the existence of the organization. For example, in a hospital, the objective may be to serve the society by providing high quality medical services at affordable prices or even free of cost to the needy ones.
When we set the objectives of our organization, our objectives should be smart. They should be, what did I say? They should be Smart. 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 अब इसको एक्सपेंड करते हैं. What do we mean by smart? As for specific. They should be clear, not vague. मतलब हम अगर कहें ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सेल्स को बढ़ाना है थोड़ा, अब ये थोड़ा बढ़ाना है बड़ा वेग सा हो गया. दे शुड बी स्पेसिफिक कि सेल को कितना बढ़ाना है. या फिर हम ये कहें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस, हमने ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा प्रोग्रेस करवाना है, तो ये बड़ी वेग सी बात है. प्रोग्रेस का क्या मतलब है? सेल बढ़ानी है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, क्या? वी शुड बी स्पेसिफिक. सेकेंड, मेजरेबल. अब यहां पर ये एग्जांपल आ जाता है. अगर हमने कहा चलो स्पेसिफिक हो गए, सेल बढ़ानी है, लेकिन सेल कितनी बढ़ानी है? किसी के लिए 10% का इंक्रीज हो सकता है, बहुत हो किसी को लगे, और किसी को लगे 30% का इंक्रीज भी कुछ खास इंक्रीज नहीं है. सो वी शुड स्पेसिफाई इन न्यूमेरिक टर्म्स. लेट अस से सेल्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%. अब ये हो गया मेजरेबल. थर्ड, अटेनेबल. अटेनेबल मतलब अचीवेबल, जिसको हम अचीव कर सकते हैं नॉर्मल एफर्ट से. ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग हो, लेकिन इतना भी चैलेंजिंग ना हो कि ज्यादातर लोग उसे अचीव ही ना कर पाए, और अचीव नहीं कर पाएंगे तो फिर वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. सो इट शुड बी अ बिट चैलेंजेबल, बट इट शुड बी अचीवेबल विद रीजनेबल एफर्ट. देन आर फॉर रेलेवेंट, यूजफुल, मीनिंगफुल, एंड टी फॉर टाइम बाउंड. जब भी कोई हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कोई टारगेट सेट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें टाइम लिमिट भी सेट करनी चाहिए, कितने टाइम में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. फॉर एग्जांपल, आपका क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव है एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाने का, एक कुछ अच्छे मार्क्स लाने का, लेकिन उसकी कुछ टाइम लिमिट तो होनी चाहिए. कितने टाइम में? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? What is the time limit? So 1 year. 1 year. तो ये हो गया टाइम बाउंड. अगर हम टाइम लिमिट सेट नहीं करें तो हो सकता है कुछ लोग तो सोचे कोई बात नहीं, 2 साल में आ जाएंगे, 3 साल में आ जाएंगे, किसी ने बताया थोड़ी था कितने टाइम में लाना है. ठीक है. सो फैक्ट्री में इसी तरह से वर्कर्स को जब हम कुछ टारगेट दे रहे हैं तो हमें उनको टाइम भी बताना है, कितने टाइम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए, वो टारगेट अचीव होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज स्ट्रेटेजी. आपने चेस की गेम खेली है कभी? Have you played the game of chess? No, sir. No. Yes, सक्षम. तो सक्षम, चेस में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है खेलते हुए? कि सामने वाले ने क्या मूव प्ले किए, उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट क्या मूव चल सकता है, उसके बेसिस पे हमें क्या मूव, मतलब हमें अपनी गेम की मूव्स के साथ साथ सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है ये भी प्रिडिक्ट करना होता है, और उसके बेसिस पर भी अपनी मूव्स को प्लान करना होता है. तो ये है स्ट्रेटेजी, जहां पर हम थोड़ा आगे तक का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और अगली 5-10 मूव्स हम एक साथ सोच के चल रहे होते हैं क्या क्या चलनी है. ठीक है. सो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ अ बिजनेस. It defines organization's direction and scope in the long run. Strategies are comprehensive action plans. What happened? Strategies are comprehensive action plans made to achieve the objectives after considering business environment factors and competitors' actions. कई बार केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्लान इज इट. तो जहां पर भी एनवायरमेंटल कंडीशंस के रिस्पॉन्स में कुछ करना है या कंपटीशन से डील करने के लिए कुछ करना है, तो हमें हिंट मिल जाता है. दैट कैन बी स्ट्रेटेजी. क्लियर? Yes. ठीक है. For example, to diversify
into a new product line, to take over business of another company. These can be strategies. Strategies में 3 dimensions होती हैं. Again, एक और हमें हिंट मिला, जहां पर भी dimensions की बात आएगी तो वो कौन सा टाइप ऑफ प्लान होगा? Strategy. Very good. First dimension is determining the long term objectives. हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये डिसाइड करना. फिर अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. हमारे पास बहुत से वेज हो सकते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. Which one suits us most, we will adopt that one. Then allocating necessary resources. फिर उसके लिए जो हमें फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, जितने लोग चाहिए, वो सब एलोकेट करना. ठीक है, ये सब आ जाता है स्ट्रेटेजी में. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, गुड. जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं बाकी के, उन्हें हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, standing plans and not sitting plans. The second type is single use plans. Standing plan उसे कहते हैं जो long term के लिए बन गए और जो बार बार रेगुलरली यूज होते रहेंगे. सिंगल यूज प्लान उन्हें कहते हैं जो एक बार यूज होने के बाद खत्म, अगली बार फिर दोबारा से बनेंगे. ठीक है. Objectives or strategies as per the NCERT do not come in any of these categories. They are neither standing plans nor single use plans, or we can say they are both standing plans as well as single use plans. इसलिए इन्हें इन दोनों कैटेगरीज से बाहर रखा गया है और इसलिए हमने इनको पहले डिस्कस कर लिया है. अब हम आते हैं बाकी के टाइप्स ऑफ प्लान्स में जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एज आई सेड, फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान्स. Standing plans, as I said, are long-term plans or the plans that are used regularly many times. These are generally made once but modified from time to time to meet changing requirements. इस कैटेगरी में फर्स्ट जो प्लान आ जाता है, टाइप ऑफ प्लान, दैट इज पॉलिसीज. आपने कई शॉप्स में देखा होगा, लिखा होता है वी सेल ऑन कैश ओनली, नो क्रेडिट. देखा है? यस सर. कुछ शॉप्स पे लिखा होता है फिक्स्ड प्राइसेस, प्लीज डोंट बार्गेन, लिखा होता है. यस सर. तो ये पॉलिसीज के एग्जांपल हैं. पॉलिसीज क्या हैं? दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स व्हिच गाइड एक्शन एंड डिसीजंस यूजुअली ऑफ रूटीन एंड रेपिटेटिव नेचर. मतलब शॉप में कस्टमर आएंगे तो बहुत से कस्टमर बार बार डिस्काउंट मांगेंगे, तो एक बार पहले से डिसीजन लेके छोड़ दिया मैनेजमेंट ने और लिख दिया वहां पर दैट फिक्स्ड प्राइसेस, प्लीज डोंट बार्गेन. तो ये पॉलिसी हो गई. अब सेल्स पर्सन को बार बार सोचना नहीं है या पूछना नहीं है ओनर से. जब भी कोई कस्टमर डिस्काउंट मांगता है, एवरी सेल्स पर्सन नोज दैट नो डिस्काउंट, फिक्स्ड प्राइसेस. सिमिलरली अगर पहले से ही लिख दिया, पॉलिसी बना ली, डिसाइड कर लिया कि हमने उधार पे नहीं बेचना, तो कोई भी कस्टमर उधार मांगता भी है तो सेल्स पर्सन को पहले से पता है क्या डिसीजन है, उन्हें बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ओनर से या मैनेजर से. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलिसीज. पॉलिसीज हेल्प इन इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी. पॉलिसी इज अ जनरलाइज्ड रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन. मेजर पॉलिसीज आर फॉर ऑल, माइनर पॉलिसीज आर फॉर एम्प्लॉइज. Policies are statements of an organization's intention to act or not to act in certain ways. For example, credit policy हमने अभी डिस्कस किया, प्राइसिंग पॉलिसी डिस्कस किया, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है. किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है दैट दे प्रेफर पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है दैट दे प्रेफर विमेन. तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हो गई. और दे में प्रेफर कैंडिडेट्स हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, दे में कीप सम जॉब्स रिजर्व्ड फॉर सच पीपल. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज. देन परचेज पॉलिसी. हमारा परचेज का क्या क्राइटेरिया होगा? कोई गुड्स हमने रॉ मटेरियल खरीदना है,
तो किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे किस से खरीदना है, कहां से खरीदना है, किस प्राइस रेंज में खरीदना है, दैट विल बी आवर परचेज पॉलिसी. इज दिस टर्म क्लियर? पॉलिसीज. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next type of plan is methods. Now methods are ways of doing things. ठीक है, जैसे हमने पहले भी एक बार एग्जांपल लिया था. सपोज यू वांट टू मेक अ कप ऑफ टी. One method is make it manually. Second method is use a tea vending machine. So these are two methods. We have to choose the best method depending on the resources. ये हमने scientific management में भी पढ़ा था ना, method study में. We have to choose the best method on the basis of resources that we have, on the basis of our requirements, the method which is most suitable for us. Okay, which will save time, which will save money, and which will save effort, and which will increase efficiency. So that method we need to choose. Once we have chosen the method, the next is procedure. Procedure क्या होता है? So the steps followed to achieve any goal or objective. Very good. It is the process. इसे हम process भी कहते हैं, procedure भी कहते हैं. अगर आपने टी वेंडिंग वाला मेथड फॉलो कर चूज किया तो स्टेप्स कुछ अलग होंगे टू मेक अ कप ऑफ टी, और मैनुअल मेथड चूज किया तो स्टेप्स कुछ और होंगे. ठीक है, तो इन अ वे वी कैन से प्रोसीजर विल डिपेंड ऑन द मेथड चोजन. Procedure is a series of interrelated steps to be taken in a chronological order. Chronological मतलब sequential order, one after the other. We cannot change the sequence. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, तो आप बनाने से पहले तो सर्व नहीं कर सकते, सर्व करना तो लास्ट स्टेप ही रहेगा. सो द स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन प्रॉपर सीक्वेंस टू अकम्प्लिश द वर्क अकॉर्डिंग टू द मेथड चोजन. तो प्रोसीजर में दो चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं. एक तो स्टेप्स हैं जो इंटर रिलेटेड है, दूसरा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है, मतलब उन्हें प्रॉपर एक ऑर्डर में ही फॉलो करना है. वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. प्रोसीजर्स हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज बाय पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस. नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान. अच्छा, इनको हम स्टैंडिंग प्लान क्यों कह रहे हैं? देखो, पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर हमने एक बार डिसाइड कर लिए तो फिर वो लंबे टाइम तक रहेंगे. बार बार वो पॉलिसी यूज होती रहेगी, जितनी बार वो काम होना होगा सेम मेथड यूज होता रहेगा, सेम प्रोसीजर यूज होता रहेगा. दैट इज व्हाई दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स. नेक्स्ट इज रूल्स. रूल्स क्या होते हैं? So code of conduct to be followed in an organization. Yes, code of conduct, or we can say specific instructions as to what is to be done, what is not to be done. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग. Everyone must reach office by 9 a.m. These are rules. Okay. Rules relate more with behavior. ठीक है, policies relate with decisions. Rules relate with, कई बार ये इसमें confusion हो जाती है या difference भी आ सकता है policies और rules में. तो क्या difference है? Policies are mainly related to decisions. Rules are related to behavior. Policy अगर कभी नहीं भी फॉलो करी, सपोज नो क्रेडिट पॉलिसी है या नो डिस्काउंट पॉलिसी है, लेकिन कोई रिश्तेदार आ गया ओनर का तो उसे डिस्काउंट दे दिया, तो उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है. रूल्स के साथ जनरली पनिशमेंट भी एसोसिएटेड होती है. नो स्मोकिंग की पॉलिसी है, अगर किसी ने स्मोक किया ऑफिस में तो फाइन लगेगा इतने रुपीस का, या ये एक्शन लिया जाएगा. सो रूल्स के साथ जनरली पनिशमेंट भी एसोसिएटेड होती है ऑन देयर वायलेशन. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Second type of plans are single use plans. Again, जब आपको प्लान आइडेंटिफाई करने को बोला जाए तो आपको टाइप ऑफ प्लान यानी मेथड या प्रोसीजर भी बताना चाहिए, और स्टैंडिंग प्लान है या सिंगल यूज प्लान है ये भी बताना चाहिए साथ में. सिंगल यूज प्लान्स आर नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग प्लान्स यूज्ड ओनली वंस. अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट इज प्रोग्राम्स.
What are programs? Programs are detailed statements about a project which outline the objectives, policies, procedures, rules, tasks, physical and human resources required, and the budget to implement the course of action. तो प्रोग्राम में यहाँ पे कीवर्ड क्या है? प्रोजेक्ट. जो किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइप ऑफ प्लान होगा वो होगा प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होना है, तो उस फ्लाईओवर से रिलेटेड जो प्लान होगा वो कहलाएगा प्रोग्राम. ठीक है, और उस फ्लाईओवर के बनने के साथ ही वो टाइप ऑफ प्लान, वो प्रोग्राम कंप्लीट. यस. ठीक है. इसी तरह से गवर्नमेंट के जितने भी ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रोग्राम्स. एंड द लास्ट वन इज बजट्स. बजट्स क्या होते हैं? एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, कि फ्यूचर में कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंस होगा. ठीक है, और जैसे हमने सपोज 1 साल का बजट बनाया, तो वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो बजट कंप्लीट, अगले साल का नया बजट फिर से बनेगा. तो बजट किस किस चीज में हमारी हेल्प करते हैं? कॉस्ट को कंट्रोल करने में, क्योंकि हमें पता है कि क्या लिमिट्स हैं, किस लिमिट के अंदर अंदर हमें खर्चा करना है. एफिशिएंटली और इफेक्टिवली फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं जब हम पहले से प्लान करके चलते हैं. एंड दे हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग. कैसे? सपोज आपने कोई नया एसेट खरीदना है, तो बजट से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास उस एसेट को खरीदने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं है. हैं तो खरीद सकते हैं, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, अभी पोस्टपोन कर देंगे, जरूरी नहीं है तो. इज इट क्लियर? Yes, sir. Types of plans, any doubt? No, sir. Okay, so we'll stop our discussion over here today. Thank you. Welcome, sir.